Hello student, welcome to the pure mathematics solution. Right, today we'll discuss about the 10th class one more topic, that is a real number. Right, this is related to exercise 1.3. You can easily understand this one. Actually we will discuss about the real number. Let us start with that. I'm just writing the three numbers, three decimal number. Suppose 4.21. Okay, next is 3.23 bar, or you can write this one as 3.232323, means it is continuous one, right, repeating one. And third one is just take this one, and this is what, suppose I write 4.215911532 and so on, means that. Okay, with the help of these three numbers we'll try to understand about the real numbers. Okay, let us see. First one is 4.21. This number, okay, can be written as 4.21. simply I can write 421 divided by 100. This point will be removed, okay, this point, and this will be in this form. Okay, again second number, this can be, this is in P upon Q form. This can be also in the P upon Q form. Okay, we'll discuss how to write the P upon Q form of this number, where bar is there, means the same number, a group of number is being repeated. चलो फिर से बात करते हैं. थर्ड वन, ये जो नंबर है जिसमें क्या हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, सॉरी, और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा. So we discuss the two things, right? First one, P upon Q form. This is the P upon Q form. This is also P upon Q form. Third number, that decimal representation is in this form, is not in P upon Q form. And the number that are in P upon Q form are known as rational number. Okay, these are rational numbers. Clear? And the number which cannot be in P upon Q form, this cannot be in P upon Q form, and the number are known as not rational, means these are irrational number. Okay, their representation will be in this form. So we have the three form, where P upon Q form. In these two cases we can have the number in P upon Q form, very simple thing. And third one is not in P upon Q form, so these are irrational number that we discuss in smaller classes. Again I'll discuss P upon Q form. One more things we can observe from here, and what is that? Rational number. First one, when we are writing, this is terminating decimal representation of that number, means after division at one place the remainder will become zero. सिंपल सा है, जब रिमाइंडर जीरो बन जाएगा तो हो गया. दूसरा केस, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ओके, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज है कि सेम नंबर्स 2 3 इज बीइंग रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स बट रिपीटिंग हुआ. ये दूसरा फॉर्म हो गया. ठीक है जी, सिंपल. एक नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए, या फिर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग. और अगर टर्मिनेटिंग है तो भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर. दूसरा केस देखिए, जहां पे P अपॉन Q फॉर्म, यानी रेशनल नहीं इरेशनल, इसमें जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इस नंबर का वो क्या है, नाइदर, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग as well as and non repeating. रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है. तो यानी रियल नंबर एक्चुअल में है क्या, रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. या तो क्या होगा, रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, रेशनल या फिर इरेशनल. अब रेशनल को कैसे पहचाने, आपको अगर टर्मिनेशन हो रहा है नंबर का, मीन्स डिवीजन के बाद एक पॉइंट पे जाके रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो सेम डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है.
ये हो गए टर्मिनेट दैट रेशनल नंबर। इरेशनल वाले केस में क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है नंबर ना ही रिपीट हो रहा है। अब इस केस में देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और चीज देखेंगे, इस नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे, वो भी करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, इसका डिनोमिनेटर देखो, पी अपॉन क्यू फॉर्म, इसमें भी डिनोमिनेटर होगा कुछ, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे जब डिनोमिनेटर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बता रहा हूं मैं, आगे भी डिस्कस करूंगा इसको। इसमें डिनोमिनेटर जो है ना 4/1 डिवाइडेड बाय 100, यानी किस फॉर्म में है 4/1, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं क्यू के, बस देखते ही पता चल जाएगा कि टर्मिनेट होगा कि नहीं, ठीक है। पी अपॉन क्यू फॉर्म है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी क्या हो गए, टू पार्ट्स बन गए, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस केस में इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2/2 5/2, सिंपल सा है, 2/2 5/2। इसमें डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, इसमें 2 and 5 आ रहा है, 2 and 5, यानी या तो 2 आता है या 5 आता है, दोनों आ जाए। उस केस में जो नंबर होगा रेशनल वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म का होगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर किसी एक पॉइंट में। दूसरे वाले केस में अगर मान लो मैं नंबर ये लिखता 311 डिवाइडेड बाय, मान लो कोई भी नंबर लिखा मैंने 27, अब देखिए 311, इसका डिनोमिनेटर देखो आप 3/3, 27 मतलब 3/3 होगा। इस केस में डिनोमिनेटर क्या है, Q जो है वो किस फॉर्म में है, 2 भी नहीं है इसमें और 5 भी नहीं है, नाइदर 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, दोनों ही नहीं आ रहे। तो उस केस में जो P अपॉन Q फॉर्म है ना, वो कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देगा, उस केस में ये रिपीटिंग वाला देगा, यानी एक ग्रुप ऑफ नंबरों का ग्रुप, या कोई भी 2 3 4 नंबर किसी एक प्लेस के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब एक चीज और देखने से पता चल जाएगी, मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 324, ठीक है, अपॉन में लिख दिया 3/5 इंटू 2/5, क्या ये टर्मिनेट होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि 3/5 ओके नो प्रॉब्लम, ये अगर आ रहा है 5/5 से इंटू कर देंगे इसको, ठीक है, तो एंड हो जाता है। लेकिन ये वाला केस आ गया ना 3/5, अब ये इसको क्या करेगा, ये वाला केस बना देगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या सिर्फ ऐसे ही होता अपने पास, जैसे 27 अपॉन 2/4 है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी या तो क्या है 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए। ऐसा नहीं हो कि इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। अब आगे करते हैं, सबसे पहले तो इसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से नंबर को, कि ये P अपॉन Q फॉर्म में होगा कि नहीं, कौन सा, टर्मिनेटिंग वाला, जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। लेट्स सी, एक वीडियो में सारा बता देता हूं मैं आपको। P अपॉन Q फॉर्म, मान लो मैंने ये लिखा 3.23, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि हाँ जी ये रेशनल नंबर प्रूव करना है, या ये कह दो कि P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं नंबर को x मान ले, तो कोई भी नंबर मान लिया 3.232323, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट एक साथ रिपीट हो रही, 2323। तो अगर 2 डिजिट हो रही है तो 2 0 लगा दो 1 के साथ, 100 बन गया x, इधर भी 100 से इंटू करेंगे 323 आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 2 प्लेस आगे चला जाएगा ना, यहां से खिसक के यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा 2323, और इस नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, तो कर देते हैं, वापिस लिख देता हूं मैं इसको 3.2323, और ये चलता जाएगा, माइनस कीजिए। जैसे हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ तो बन जाए 99x, 100 माइनस x, इस साइड ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 0 यानी पॉइंट के बाद 0 आ गया, 223 320 बन गया, तो x कितना आ गया 320 डिवाइडेड बाय 99। क्या ये P अपॉन Q फॉर्म है, बिल्कुल है। और अगर P अपॉन Q फॉर्म है, Q 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, दिस इज रेशनल। हमने प्रूव कर दिया कि नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, कौन सा, जो क्या हो रहा है इस फॉर्म में, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें देखें, इसके फैक्टर भी चेक कर लो आप, जैसे मैंने पहले बताया था 320, इसके फैक्टर क्या होंगे 3/2 into 11,
ना तो अदर देन यानी 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली अगर किसी से पूछा तो क्या कहेंगे हम कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन कौन सा वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, इस फॉर्म में है, यानी जिसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लिए होंगे, मान लो देखिए पूरा लास्ट तक देखिए, हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा 3.1 2 3 5 7 8 एनी रेंडमली कोई भी नंबर आ जाएगा, नहीं रिपीट नहीं होंगे, वो चलता जाएगा। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 3.142 लाइक ऐसे चलती रहती है, तो ये भी क्या है, रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये रिपीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा, रेशनल हो जाएगा। अब देखिए कौन से नंबर हो सकते हैं, रेडिकल्स जो होते हैं, रेडिकल्स क्या है, जैसे √3, 3 पावर 1/2 1/2 तो यही होगा √2, 1/4, 7/1/4, यानी जो ऐसे नंबर जिसपे पावर क्या फ्रैक्शन में है, लेकिन ये नहीं हो सकता 9 पावर 1/2, ये तो हमें पता है कि 3 हो गया, ये तो फिर क्या होगा, इरेशनल नहीं है, रेशनल बन गया, ठीक है, क्योंकि इसका अंडर रूट आएगा, अंडर रूट क्या होगा 3, यानी ऐसे नंबर रेडिकल वाले, ये नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इनको अगर डिवाइड करने के बाद यानी इनको सोल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करें, दिस इज द क्वेश्चन कि √3 है ना, वो क्या है आपके पास, इरेशनल है, तो मैं इसी को करता हूं। आपके सिलेबस में 10th क्लास में यही है कि √3 या √5, मान लो मैं √3 लेता हूं, इज इरेशनल, ठीक है। टू प्रूव, ये प्रूव करना है आपको कि ये रेशनल नंबर है √3, सिंपल सा है। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, क्या है वो, को प्राइम नंबर, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा को प्राइम या को प्राइम्स लिख लो, या को प्राइम, यानी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं, कोई भी फैक्टर है वो कॉमन नहीं आ रहा उनमें, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम। जैसे मैंने लिखा 14 एंड 15, कोई भी कॉमन नहीं, HCF कितना है 1 है, तो ये नंबर अगर मैं इसको लिखूं 14 एंड 15 आर को प्राइम, दैट इज राइट, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं मान लो ये लिख देता 12 और 14, ठीक है, अपॉन में लिखो या ऐसे लिख दिया 12 एंड 14, ये को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका HCF क्या है 2 है, यानी कॉमन फैक्टर है इसमें, और वो कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, समझ आ गया। इसको यूज करेंगे हम, इसलिए बताया मैंने को प्राइम नंबर कौन से हैं, ऐसे नंबर जिसमें फैक्टर क्या है कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। √3 को करते हैं, इसको हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है ये मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन। इस मेथड में क्या क्या जाता है कि जो है उसका उल्टा ज्यूम कर लेते हैं हम, उल्टा मान लेते हैं और फिर प्रूव कर देते हैं कि जो हमने माना वो गलत है। बस ये सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा वो नहीं है, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हम कर रहे हैं उसका उल्टा लेना है। तो √3 क्या लिया हमने, √3 को इरेशनल बताना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट अज्यूम कर लेता हूँ √3 बी रेशनल, उल्टा मान लिया मैंने, कहा ना कॉन्ट्राडिक्शन, इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी मीन्स विद नो, ओके, वी नो दिस इज व्हाट इरेशनल, फिर भी हमने मान लिया कि इरेशनल, सॉरी रेशनल मान लिया, इरेशनल है। अगर √3 इरेशनल है तो इसका मतलब √3 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, P/Q। इरेशनल नंबर का तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो P/Q फॉर्म में आएगा, और P/Q फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर, ये भी कंपल्सरी है, अदरवाइज तो वो फ्रैक्शन बन जाता है, P/P एंड Q
आर को प्राइम। वो बताया ना मैंने, को प्राइम मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है पी और क्यू में। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कर, सिंपल सा है, हम ये प्रूव कर देंगे इसमें कुछ कॉमन है, यानी को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, दैट्स ऑल, ये प्रूव करना है। लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो p को क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू क्यू लिख दिया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, पी स्क्वायर क्या बन गया 3q स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा है, ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया भी आपको। उस केस में क्या होता है कि अगर ये इस फॉर्म में है, कोई भी नंबर इस फॉर्म में, यानी रिमाइंडर वाला पार्ट जो है ना वो 0 है, और जिसके साथ रिमाइंडर 0 होता है इसका मतलब वो उसका, जैसे क्यू स्क्वायर इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, 3 भी इसका फैक्टर होगा। क्यू स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, ये तो कोई भी नंबर मान लिया हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं एक चीज लिख सकता हूँ, इससे एक कंक्लूजन कर सकता हूँ कि 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, सिंपल सा लिखा हूं। और अगर 3 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 इज फैक्टर ऑफ पी। जैसे मैं लिख देता हूं 81, 3 इज फैक्टर ऑफ 81, तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 9। सिंपल सा भाई, 9 81 का मतलब क्या होगा 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर का फैक्टर है तो 9 का फैक्टर होगा, अदरवाइज तो दोनों का ही नहीं होगा। तो मैंने ये कर दिया कि जी पी स्क्वायर का फैक्टर एक फैक्टर 3 है, या मैं कह देता हूं p का एक फैक्टर 3 है। और अगर p का फैक्टर है तो इसका मतलब इस p को, इंटीजर को अगर डिवाइड करूंगा मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी मैं p को लिख सकता हूं, देयरफॉर वी कैन राइट p इक्वल टू 3 इंटू, सपोज c ले लिया, a ले लो, b ले लो, कुछ भी, p इक्वल टू 3c, यानी 3 इंटू एन इंटीजर, उस इंटीजर को मैंने c मान लिया, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 0 का है, कोई बात नहीं, हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे, फिर से p का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9c स्क्वायर। p स्क्वायर कितना होगा, इसका दोनों साइड स्क्वायर किया, p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये c स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम उठा सकते हैं, ये देखिए, तो p स्क्वायर क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर, यहां लिख देता हूं 3q स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू रखी मैंने, ये जो p स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला पार्ट है, ये जो है हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 3q स्क्वायर लिखा मैंने, p स्क्वायर की जगह इक्वल टू क्या होगा 9c स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, 3 बच जाएगा, यानी q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3c स्क्वायर। देखिए पहले वाली सेम वही सिचुएशन आ गई जो यहाँ पे थी, p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, सेम सिचुएशन, q स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी फिर से मैं कह सकता हूं कि रिमाइंडर 0 है, प्लस 0 लिखो, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो मैं एक चीज फिर से लिख सकता हूं कि 3 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ q। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो p फैक्टर था किसका, सॉरी 3 फैक्टर है p का, ये वाला, और 3 फैक्टर है q का, इसका मतलब 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में। और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम है, पहले लिखा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं विच, सीधा सा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट, यानी विरोध कर रहा है, जो हम कह रहे हैं उसका उल्टा लिख रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट और अजम्पशन, और अपनी अजम्पशन क्या थी रेशनल की, सो √3 इज नॉट रेशनल, और अगर नंबर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। सिंपल सा है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या होगा इर्रेशनल, या तो वो नंबर क्या हो है ही नहीं, समझ रहे हो, या तो वो नंबर रियल नहीं है, और रियल है तो या तो रेशनल होना चाहिए या इरेशनल, रियल के दो ही पार्ट बताए मैंने, या तो रेशनल होना चाहिए या इरेशनल। मेरे को लगता है ठीक है, समझ आ गया होगा। एक बार फिर से प्लीज शेयर, लाइक दिस चैनल, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।